You see, first of all, I would like to offer my condolences to the commanding officer Santosh Babu and the other 19 brave soldiers who were killed by the Chinese army. My condolences to their immediate family, and I pray that the Almighty give them patience at the loss of their loved ones. And the country also is very upset. We are very angry at what happened which resulted in the loss of our 19 brave soldiers. The first important point which I want to tell is that the Prime Minister of India, Mr. Modi, must inform the country where does the accountability, who's accountable for this. The death of these 20 soldiers, who's responsible? Does the accountability lies with the Prime Minister, the Defense Minister, Home Minister, NSA or the CDS? The country wants to know who's accountable for this. Some accountability must be fixed. Third and important point is that, will the government avenge these killings of our soldiers? And the most important point is that the best avenge is that to remove the Chinese from the 4.5 kilometers of territory which they have occupied in Galwan. That is India's territory. What is Chinese army doing in Pong Song Su Lake? This is very important. And even now, when on June 2nd, the government said, oh, de-escalation, de-engagement has happened. If de-escalation and de-engagement had happened, how did this incident take place? And then, when our military commanders were speaking to the Chinese counterparts, why did we accept that we allowed them to hold those talks on Indian territory? Even now, at Petrol Point 15, Petrol Point 17, China is still occupying that area. So, and lastly, the Prime Minister should also inform the nation and the country that how many of our brave soldiers are still in the custody of Chinese. These are important points which I hope that the Prime Minister would respond and tell the country, because people of this country should know. We have suffered huge losses. We cannot just say that, okay, we have lost our brave ones. Their sacrifice should not go in vain, and for that not to go in vain, Mr. Modi, Prime Minister, should ensure, his government should ensure that the Chinese leave the occupied territory in Galwan, in Pong Song Su Lake, in PPP 15 and PPP 17. That is the most important thing which the government must do, because the biggest tribute which we can pay to our brave soldiers is to ensure that the Chinese leave that territory. Leave that territory which they have occupied Indian territory. And lastly, the government should tell us how many such soldiers are still in the custody of the Chinese. A statement comes today by External Affairs Minister that nothing will be done to de-escalate. What does that mean? The Chinese give an aggressive statement and we give a different statement. So what do you think? What precautionary measures should be taken by the government? No, the best measure which I demand from the government is that the Prime Minister should inform the country. In last 6 years, 18 times he has spoken to the Chinese counterpart. What has that led to? It has led to the Chinese occupying Indian territory in the Galwan area, in the Pong Song Su Lake. 20 soldiers have lost their lives. You know, mere statements by the government, by the Prime Minister, are empty words. These are all empty words. The country wants to know what action you are going to take. The country wants to know by what time will we be getting back that territory which China has occupied. That is the best reply that the government should give. Otherwise, these sacrifices will go in vain of our brave soldiers. You know, why did we speak to the Chinese army in our territory and saying that it's a no man's land? No, it was not a no man's land. Even while we were speaking, the Chinese were occupying PPP 15 and PPP 17. So these are important questions which the Prime Minister and his government must answer to the country.
सर ये जो घटनाक्रम हुआ भारत और चाइना का जो पेशों को उस पर आपकी क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू हैं उनको और 19 जो हमारे बहादुर सिपाही जो मारे गए चीन की आर्मी की तरफ से, मैं उनको, उनके अफराद ख़ानदान को कंडोलेंसेस पेश करता हूं। और हमारे मुल्क भारत ने अपने बहादुर सिपाहियों को और एक कमांडिंग ऑफिसर को खोया है, तो मेरी तमाम उनसे हमदर्दी है और हम दुआ करते हैं कि उनको ऐसे मुश्किल वक्त में उनको परवरदिगार सब्र दे, क्योंकि उन्होंने किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने हस्बैंड को, किसी ने अपनी औलाद को खोया है। तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी इन तमाम बहादुर सिपाहियों ने मुल्क की सालमियत के लिए दी है। दूसरी बात यह है कि पिछले अप्रैल के तीसरे हफ्ते से ये मुसलसल चीन की तरफ से गालवान वैली में, पांगसोंग सू में, वहाँ पर चीन की फ़ौज बड़ी तादाद में घुसकर करीब 4.5 किलोमीटर के करीब भारत की टेरिटरी को उन्होंने कब्ज़ा किया है। बार बार मोदी गवर्नमेंट तरफ से ही कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये सब ठीक ठाक है, ये सब गलत है, सब गलत है। बाद में इसका इकरार होता है, क्योंकि जब सैटेलाइट के तस्वीर आते हैं, फिर दोनों मिलिट्री के ज़िम्मेदार लोग बैठकर बातचीत करते हैं। उसके बाद 6 जून को ये कहा गया कि डी एस्केलेशन होगा, डी एंगेजमेंट हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप डी एस्केलेशन, डी एंगेजमेंट की बात करते हैं तो फिर हमारे ये 20 सिपाही कैसे मारे गए? हम सबसे पहली बात प्राइम मिनिस्टर से हम पूछना चाहते हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या डिफेंस मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या होम मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या एनएसए जिम्मेदार है या सीडीएस जिम्मेदार है? आखिर इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? इन हमारे 20 जो सिपाही मारे गए, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? दूसरा ये कि इनकी जो जानें जा चुकी हैं, यकीनन इसका हुकूमत की तरफ से एक जवाब देना चाहिए, जिसको कहें कि एवेंज करना चाहिए। और उसका बेहतरीन तरीक़ा यह है कि चीन को हम हमारी टेरिटरी से उनको हटाएं। जो टेरिटरी उन्होंने भारत की टेरिटरी थी उस पर कब्ज़ा करके बैठे हैं, वरना इन तमाम सिपाहियों की जान जो गई है वो रायगा चले जाएगी। अगर इनकी जान को जो चली गई है रायगा नहीं जाने देना चाहिए। इनकी जान की अगर अहमियत है तो हम वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर से, मोदी से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप चीन को हटाइए हमारी ज़मीन से, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। ये सबसे अहम बात है। तीसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए, क्योंकि देश में आज हमारे इन 20 सिपाहियों की मौत के बाद बहुत गम और गुस्सा है। देश ये जानना चाह रहा है कि चीन ने आखिर कितनी हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। बताती क्यों नहीं सरकार ये? भाई डी एस्केलेशन, डी एंगेजमेंट हो रहा है तो फिर आप कितनी ज़मीन पर चीन ने कब्ज़ा किया? चीन ने तो अपने इलाके में आर्टिलरी भी लगा दिए हैं। इसका क्या मतलब है? बंकर्स बना रहा है जहां पर कब्जा किया है उसने। तो प्राइम मिनिस्टर को यह बताना चाहिए कि चीन ने हमारी कितनी ज़मीन पर अंदर घुसकर कब्जा किया है। ये बहुत अहम है, इसलिए कि ये पहली मर्तबा चीन इतनी बड़ी तादाद में अपनी फ़ौज के साथ भारत के इलाक़ों में घुसा है। करीब 40 साल के बाद बग़ैर गोली चले हमारे सिपाहियों को मार मार कर इनकी जान ले ली गई है। तो प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा। कैजुअलिटी उधर भी हुई है सर। अब भाई अगर उधर हुई है तो फिर आप बता दीजिए ना। अगर कैजुअलिटी हुई, कैजुअलिटी का होने का मतलब ये तो नहीं है कि हमारी ज़मीन से छोड़ कर चले गए। हमारी ज़मीन पर आज भी वो लोग कब्जा करके बैठे हैं। 4.5 किलोमीटर अंदर भारत की टेरिटरी में चीन की फ़ौज बैठी हुई है। गालवान में जो भारत का इलाका है, हद तो ये हो गई कि कैसे ये सरकार इस बात पर राजी हुई कि जब 2 आर्मी के कमांडर्स की मीटिंग हुई तो भारत की टेरिटरी पर चीन कैंप लगाता है और वहाँ जाकर हम बात करते हैं। तो ये तो बहुत ही सदमे की बात है, तकलीफ दे बात है
इसलिए उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इन तमाम चीज़ों का जवाब देंगे। आपको लगता है कि ये सरकार का फेल्योर है, ये डिप्लोमेटिक फेल्योर है, स्ट्रेटेजिक फेल्योर है? यकीनन इनकी ही जिम्मेदारी है ना। जब आपको तमाम रिपोर्ट्स मिल रही थी कि चीन की आर्मी गलवान में, पोंगसोन सू में, हमारा इलाका है, वहाँ पर ये लोग दाखिल हो रहे हैं, हमारी टेरिटरी पर आ रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? फिर ये क्यों इतनी खामोशी है? भाई वजीर या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम खामोश नहीं बैठेंगे प्रोवोक अगर करेंगे। सर वो तो हमारे 20 लोगों की जान ले चुके हैं, हमारी भारत की टेरिटरी पर कब्जा कर चुके हैं। सरकार इसके बारे में क्या करने वाली है? और ये भी बताना चाहिए मोदी सरकार को कि क्या चीन की पास हमारे अभी कोई फौजी हैं उनके कब्जे में, उसका नंबर बताएं। भाई बताते क्यों नहीं देश को? आप कब तक छुपाएंगे? आप लोग छुपा छुपा के तो आज ये नौबत आ गई कि आज हमारे 20 सिपाहियों की मौत हो गई। सर ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे समय पे सरकार के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, और आप जैसे सियासतदान नींद में एक निकाल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो आज भी सरकार के साथ खड़ा हूं। मैं तो सरकार से ये पूछ रहा हूं कि हमारी कितनी ज़मीन पर चीन ने कब्जा किया। पहले तो सरकार ने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक ठाक है, चंगासी कहा। बाद में मालूम हुआ कि भाई इन्होंने कब्जा कर लिया। तो भाई कितना ज़मीन पर कब्जा किया बताएं ना देश को। देश को बताने में आखिर इतनी तकलीफ क्या हो रही है? आप बताइए देश को कि चीन ने, यकीनन चीन ने हमारी टेरिटरी पर कब्जा किया है। गलवान जो हमारा इलाका है, पोंगसोन सू लेक हमारा इलाका है, जहां पर चीन कभी नहीं आया वहां पर चीन पहुंच चुका है। तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि कोई चीन की फौज PLA हमारी ज़मीन पर कब्जा कर ले और हम खामोश बैठे रहे, आंख बंद कर ले। भाई जितना मुल्क BJP का है उतना मुल्क मेरा भी तो है, मुझे भी तो पूरे देश को जानना चाहिए। पूरे मुल्क में गम और गुस्सा है। इन मरने वालों का भारत सरकार इसका कोई रद्दोबदल या कुछ रिएक्शन करेगी या नहीं करेगी? और इनकी मौत को अगर रायगा नहीं जाने देना है तो हमको चीन को हमारी टेरिटरी से हटाना पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या स्टेप लिए जाने चाहिए? भाई ये तो सरकार को बताना चाहिए अब तक क्या स्टेप लिए। ये स्टेप जरूर लेना चाहिए कि चीन जिस जमीन पर कब्जा कर चुका है उनको वहां से हटना चाहिए। चीन को 4.5 किलोमीटर हमारे टेरिटरी के अंदर चीन आकर कब्जा करा है। सरकार को ये काम करना चाहिए, चीन को वहां से हटना चाहिए। और इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी? कौन जिम्मेदार है इसका? ये जो 20 हमारे सिपाही मर गए हैं, इसका अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी? किस पर जाकर रुकेगी? या वो भी अपोजिशन पे डाल देंगे आप?